Good morning, students. This is Dr. R.C. Mishra from Team Super Cluster. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट दी डेहिसेंस ऑफ एंथर. दो इंपॉर्टेंट बातें हमने याद की. इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म dehiscence takes place at two cell stage, and these two cells are vegetative cell, which one is the larger, and second one is generative cell, which is smaller. Vegetative cell further makes pollen tube. In rest of the 40% angiosperm, dehiscence takes place at three cell stage, because generative cell undergoes another mitotic division forming two male gamete. अब नीट में एक सवाल पूछा गया है, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पॉलन मदर सेल इन एंजियोस्पर्म नीड्स हाउ मेनी मियासिस एंड हाउ मेनी माइटोसिस. सो मियासिस तो ऑलवेज एक होगा, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन, एंड माइटोसिस कितना हुआ? दो बताया आपको, ठीक. बट अगर यही क्वेश्चन अगर फीमेल के लिए पूछा जाए, development of the mature female gametophyte in angiosperm from megaspore mother cell involves how many meiosis and how many mitosis, तब बच्चों आंसर हो जाएगा 1 meiosis 3 mitosis. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नाउ लेट मी स्टार्ट विद द पॉलिनेशन. अभी हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन देखा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया. अब पॉलिनेशन पढ़ के पॉलन ग्रेन्स को फीमेल तक पहुंचा के तब फीमेल सेक्स ऑर्गन की चर्चा करते हैं. ओके, पॉलिनेशन. Two types: self and cross. Autogamy, cross pollination is also called as allogamy. Now, what is pollination? It is the transfer of pollen grain from anthers to stigma of either same flower or different flower. Now, what is self-pollination? It is the transfer of pollen grain from anthers to stigma of the same flower or different flower of the same plant. So, if within flower then actually it is called as autogamy, and between flowers but same plant, it is called as zytonogamy. So, one very important question बच्चों, zytonogamy is morphologically cross pollination, but genetically self pollination. So, two different kind of pollination is there. Self pollination are commonly called as autogamy, cross pollination are called as allogamy. Now, if pollination takes place within flower, it is called as autogamy,
and complete autogamy is rare. This is very important question of NCERT. That is, complete autogamy is a rare phenomena. Okay. And if transfer of pollen grain takes place from one flower to other flower of the same plant, it should be called as heteronogamy. See, genetic constituent of all the cells of a particular plant remains the same. That's why genetically it is self-pollination. But since transfer takes place from one flower to another flower, hence morphologically it is cross-pollination. Say for example, अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए this is called as tassel, and tassel represent male inflorescence, and at nodes you will get cob. This is called as cob, and cob represent female flower and long silky hair. These are long silky hair, and this is स्टाइलर हेयर. और ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है. इन जियामेज द लॉन्ग सिल्की हेयर is modified, so it none other than styler hair, and it helps in trapping of pollen grain, right? तो जब भी कभी हवा चलती है तो ये pollen grains गिरते हैं and they gets trapped. So if pollination takes place in between different flowers of the same plant, it is called as zytonogamy. Now next one is the cross pollination. Cross pollination. So true cross pollination is xenogamy. Xenogamy is true cross pollination where pollination takes place between different plants of the same species. Whereas if pollination takes place between different species, it should be called as hybridism, and it is very rare phenomena. It is very rare in plant. Although such kind of breeding is common in animals. आपने सुना होगा कि अगर फादर मेल हॉर्स मदर फीमेल डोंकी हो तो हिनी पैदा होता है, और दूसरे में अगर फादर डोंकी हो जाए और मदर हॉर्स हो जाए तो ऐसे कंडीशन में म्यूल इज सुपीरियर फ्रॉम बोथ ऑफ इट्स पेरेंट, विच इज कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस, which was defined by G.H. Shull. So according to G.H. Shull, heterosis can be defined as superiority of F1 heterozygous over their parents. So outbreeding, also called as cross pollination or allogamy, resulted in elevation of useful character, that is called as hybrid vigor or heterosis. But inbreeding or autogamy or self-pollination, generation after generation brings about reduction in useful characters, that is called as inbreeding depression.
जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड में, तो आपने पढ़ा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम वही चीज है, उसी से मिलता जुलता है कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो यूजफुल कैरेक्टर बढ़ेंगे और लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यूजफुल कैरेक्टर घटेंगे। सो फॉर genetic more and more genetical diversity, for variation, cross pollination or allogamy is more advantageous. We should avoid autogamy. That's why even in हम लोगों में I know हमारे यहाँ शादियाँ एक ही गोत्र में नहीं होती। ये गोत्र क्या होते हैं? These are the gene families। तो एक ही जीन फैमिली में शादी करने से मान लीजिए दोनों तरफ से एक एक रिसेसिव एलील्स थे, तो वो अगर रिसेसिव एलील हैं सो दे आर अनेबल टू गेट एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन अगर मिल गए तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन और हो जाता है। सो इसीलिए वी मस्ट अवॉइड क्लोज मैरिजेस। इसीलिए जहाँ जहाँ आप देखोगे क्लोज मैरिजेस होता है वहाँ पे जेनेटिकल डिजीजेज ज़्यादा होती। ओके, सो इट इज़ वेरी रेयर फिनोमेना। एक बार क्या हुआ था, अभी 5-6 साल एक पहले मेरठ में केले और मक्के के बीच में क्रॉस हो गया था, तो जब केले का छिलका हटाया गया तो अंदर मक्का निकला। सो दैट वाज द केस ऑफ हाइब्रिडिज्म। अदरवाइज इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, although we used to carry some field trial and some experiments. Now question arises, what are the different conditions for self pollination? Conditions for self pollination। तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। तो प्लांट मस्ट हो बाइसेक्सुअलिटी। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर मस्ट हैव स्टैमेन एज वेल एज पिस्टिल। ओनली प्रेजेंस ऑफ स्टैमेन इन पिस्टिल इज अनेबल टू फुलफिल द ऑटोगैमी। दे मस्ट get mature at the same time, so that is homogamy। And third, cleistogamy। So what is cleistogamy? This is the presence of permanently closed bisexual flower। अब यहाँ पे क्या होता है कि within flower opening up floral bud, that is anthesis, doesn't take place. Flower remains permanently closed, and permanently closed bisexual flowers are called as cleistogamous flower, and it always ensures pollination। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो नीट में पूछा गया है कि which of the following method of pollination or condition is not affected by lack of pollinators, lack of pollinating agencies? So it none other than cleistogamy। So not all, पहला always sets seeds, सीड का बनना इंश्योर रहता पक्का। नंबर 2, not affected by lack of pollinating agencies। Now in viola and Commelina bengalensis, commonly called as Kankavua or Kanchara, two different kind of flowers are present, normal
normal opened flower and cleistogamous. So two kind of flowers over there. Chasmogamous, that is normal flower, normal open, and second cleistogamy, permanently closed. So what are the conditions for cell pollination? Bisexuality, flower must be bisexual, both stamen and pistil must get mature at the same time, दोनों शादी के लिए लगभग एक ही साथ तैयार होने चाहिए. Then cleistogamy, presence of permanently bisexual flower. और फंजाई में आपको बतलाया था एक लेक्चर में कि इन फंजाई परमानेंट क्लोज फ्रूटिंग बॉडीज इज कॉल्ड एज क्लिस्टोथीसिया. और अगर क्लिस्टोगैमस कंडीशन होगी तो इट इंश्योर्स सीड सेटिंग एंड सेकेंडली नॉट अफेक्टेड बाय लैक ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसीज. There are certain plant where you can get both normal chasmogamous flower as well as permanently closed bisexual cleistogamous flowers such as viola, pansy and Commelina bengalensis. One more adaptation is there, that is bud pollination. Bud pollination, and it occurs in wheat, गेहूं, wheat. So what is bud pollination? Means anthesis takes place after pollination. Anthesis takes place after pollination. Now what are the advantages of the autogamy? कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाए तो जो एग्जाम में आए बस वही याद रखिए. तो ऑटोगैमी का एडवांटेजेस, फर्स्टली नो नीड ऑफ pollinating agencies except zetanogammy. Maintain purity of race, but useful character decreases, which is called as inbreeding डिप्रेशन. यही रीज़न है बच्चों, आपको मालूम होगा जिनके घर में खेती होती होगी कि जो गांव का चतुर किसान होता है हर 3-4 साल के अंदर अंदर वो गेहूं का बीज बदल देता है. बिकॉज यू नो सेल्फिंग लीड्स टूवर्ड्स होमोजाइगोसिटी. तो इट लीड्स टूवर्ड्स होमोजाइगोसिटी. एक साल के बाद 50% होमोजाइगस, फिर 75. तो ऐसे होता क्या है कि प्रोडक्शन जो है पर एकड़ ईयर आफ्टर ईयर कम होता रहता है. तो इसीलिए अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि हर 2 साल बाद गेहूं के बीज अपने बदल दीजिए. इधर यूज सर्टिफाइड सीड और यूज फाउंडेशन सीड. अगर आपको फाउंडेशन सीड मिल जाए तो यू कैन मल्टीप्लाई इट, देन आप इसको यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन.
condition for cross pollination, also called as allogamy. Number 1, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है रिडक्शन इन सेक्स ऑर्गन। जैसे ऑटोगैमी के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कि अगर मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है तब क्रॉस पॉलिनेशन विल बी द रूल। ठीक, रिडक्शन इन सेक्स ऑर्गन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर फिर दो तरह का होगा। पहला स्टैमिनेट और दूसरा पिस्टिलेट। So if flower contains male sex organ, it should be called as staminate. If contains carpel or pistil, that is female sex organ, it should be called as pistillate. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों बताने जा रहा हूं, आप याद रखना इसको बात को। पहला क्या है कि अगर स्टामिन स्टेराइल हो जाए तो उसे स्टैमिनोड्स कहा जाता है। स्टेराइल स्टामिन इज कॉल्ड एज स्टैमिनोड। उसी तरीके से अगर पिस्टिल स्टेराइल हो जाए तो उसको पिस्टिनोड कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता एक और सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड स्पर्मेशिया। तो स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्मेशिया नॉन मोटाइल स्पर्म को कहते हैं। सो नॉन मोटाइल स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेशिया। और यहाँ पे अगर स्टेराइल स्टामिन हो तो स्टामिनोड और स्टेराइल पिस्टिल हो तो पिस्टिनोड कहा जाएगा। अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं ये फिर से इधर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट और प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। या तो एक ही पौधे पे होंगे, अगर एक ही पौधे पे हैं तो क्या बोलेंगे, मोनोसियस। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मोनो मतलब एक ही में। और ऐसी कंडीशन पाई जाती है कुकुरबिट्स में, कद्दू, कुकुरबिट्स में। तो एक ही पौधे पे अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लगे हों तो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसियस कंडीशन। अब अगर अलग अलग पौधे पे ही मेल और फीमेल पौधे ही अलग अलग हों तब उसको बोला जाएगा डायोसियस। और यहां पे अगर आप देखो तो DI का मतलब होता है डिफरेंट, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे लगे होंगे। और ऐसी कंडीशन हमको कहाँ मिलता है बच्चों, पपाया, कैरिका पपाया। कैरिकेसी फैमिली का बच्चा है, ये पौधा है। अच्छा, अब चूंकि मेल और फीमेल पौधे पपीते के अलग अलग होते हैं, यही बात है बच्चों की अगर आप गांव में पपीते की खेती कर रहे हो तो हमेशा एक से ज्यादा पौधे लगाना। अगर आप एक पौधे लगाओगे तो फल नहीं लगेगा। फल लगने की शर्त है, जहां पे अब एक ही बीज आप लगाओगे एक पौधा बनेगा तो वो या तो मेल बनेगा तो वैसे भी फल नहीं देगा। बाई चांस वो फीमेल निकल भी गया तो भी फल नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक उसकी शादी नहीं कराया जाए। ठीक, अब अगर आपने एक ही पौधा लगाया और उसमें फल लग रहा है, इसका मतलब जरूर 500 मीटर एरिया में किसी ने पपीते की खेती कर रखी है और वहां मेल पौधे हैं जहां से पॉलन ग्रेन आया होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बात आप याद रखेंगे।
तो पहला कंडीशन हो गया डिक्लाइनिंग। अब डिक्लाइनिंग में यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मोनोसियस कंडीशन या डायोसियस। अगली जो कंडीशन है नंबर 2, वो है डाइकोगैमी। बच्चों फिर अब यहां पे देखिए, नाम से पता चल रहा है, ये देखिए डाई, डी आई मतलब डिफरेंट। तो अगर मान लीजिए स्टामेन और पिस्टिल अलग अलग समय पे, डिफरेंट समय पे मैच्योर करें, तो ऐसी कंडीशन में भले ही फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, लेकिन कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब यहां फिर 2 क्वेश्चन बनेगा, इसका मतलब पहले लिख लीजिए। मैच्योरेशन ऑफ स्टामेन एंड पिस्टिल एट डिफरेंट टाइम। अब यहां फिर कौन पहले मैच्योर कर रहा है? तो आपको मालूम है प्रो मतलब होता प्रायर, पहले, प्रोकैरियोट, पहले वाली सेल धरती पे जो पहले आई। उसी तरीके से अब अगर स्टामेन और पिस्टिल अलग अलग समय पे मैच्योर कर रहे हैं, तो पहले कौन मैच्योर कर रहा है? तो उसकी बेसिस पे प्रोटोगाइनी, प्रोटैंड्रस। प्रो मीन्स पहले, और कौन मैच्योर कर जाए? गाइनीशियम। और प्रोटैंड्रस का मतलब पहले स्टामेन। तो प्रोटोगाइनी का मतलब हुआ मैच्योरेशन ऑफ कार्पेल बिफोर स्टामेन, मालवेसी फैमिली मिलेगा आपको। और प्रोटैंड्रस कंडीशन मैच्योरेशन ऑफ स्टामेन बिफोर कार्पेल, रोजेसी फैमिली, गुलब्बो वाली फैमिली में मिलेगा आपको। तो फिर 2 कंडीशन हो गई, अगर स्टामेन और पिस्टिल अलग अलग समय पे मैच्योर करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब पहले कौन मैच्योर कर रहा है? अगर पहले गाइनोशियम कर रहा है तो प्रोटोगाइनी बोलेंगे, अब पहले एंड्रूशियम कर रहा है तो प्रोटैंड्रस कंडीशन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन, मेल स्टेरिलिटी and self incompatibility, मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सी मेल स्टेरिलिटी जब हम जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे मेल sterility is an example of cytoplasmic characters or cytoplasmic inheritance, and it met in Giamese Macca. So this is the reason why in Giamese you will get cross pollination. And what is self incompatibility? What happens sometimes due to chemical barriers, pollens are unable to germinate over stigma of the same flower. Such condition is called as incompatibility. इस कंडीशन को इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, तो रिजल्ट क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। as in potato and petunia. So what is self incompatibility?
when pollens are unable to germinate over stigma of the same flower due to chemical barrier. Such condition occurs in family Solanaceae. और सोलेनेसी का निकनेम क्या है बच्चों? इसको प्यार से चोखा फैमिली कहा जाता है। Why it is called as चोखा फैमिली? क्योंकि आपने लिट्टी चोखा, इट्स डिश ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और इसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे आलू यूज होता, बैगन यूज होता, टमाटर यूज होता, हरी मिर्च यूज होती है, ऑल दीज 4 मेजर इंग्रेडिएंट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। ठीक, दैट्स व्हाई इट्स निकनेम इज चोखा फैमिली। एक बहुत प्यारा सवाल जो एक बार आईएएस तक में पूछा गया कि व्हाई दिस फैमिली ऑफ द पोटैटो इज कॉल्ड एज सोलेनेसी। सोलेनेसी के नाम, इस फैमिली के नाम सोलेनेसी क्यों पड़ा? तो रीजन इसके नाम में यह बच्चों, नाम में क्या है ये देखिए, swollen and obliquely placed septa. So in family Solanaceae you will get swollen and obliquely placed septa, and this is diagnostic feature. तो बच्चे ये जरूर याद रखिएगा। और मेल स्टेरिलिटी आपको बतलाया, इट इज साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स, और कहाँ मिलेगा? जियामेज में। एक और दो, क्यों ना दो बढ़िया बढ़िया सवाल ले लिया जाए। पहला सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस आर लोकेटेड इन, तो आंसर होगा या तो किचन में मिलेगा और या पावर हाउस में मिलेगा। और सेल का किचन हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। सो सिंस वी नो दैट circular double stranded histone free GC rich DNA occurs in prokaryotes along with mitochondria and chloroplast. So all those characters in eukaryotic organisms which are under the control of genes located either within chloroplast or mitochondria are called as plasma genes or cytoplasmic genes. Their inheritance is called as साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक और प्यारा सवाल अगर जेनेटिक्स में पूछा जाए कि साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल जीन्स ओनली, दूसरा ऑप्शन रहेगा प्लाज्मा जीन्स ओनली, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। आंसर मेरे प्यारे होगा बोथ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पे कंट्रोल कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है। एक और बहुत प्यारा सवाल डिस्कस कर लिया जाए। जियामेज, मक्का। मक्का को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट गिफ्ट बाय अमेरिका टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ अमेरिका टू रेस्ट वर्ल्ड, इट मीन्स इट्स अ न्यू वर्ल्ड क्रॉप। इट्स अ न्यू वर्ल्ड क्रॉप। और अगर आपसे टॉप 5 एडिबल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड सवाल पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। दुनिया में ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा किन 5 फसलों को खाता है? तो बच्चों नंबर 1 पे आएगा व्हीट, गेहूं, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। नंबर 2 पे आएगा जियामेज, नंबर 3 पे आएगा पैडी, धान, नंबर 4 पे आएगा पोटैटो, नंबर 5 पे आएगा मिलेट, दैट इज बाजरा। तो ये याद रखिएगा, टॉप 5 स्टेपल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड में आता है जियामेज। एंड इसके एलुरान लेयर में प्रोटीन पाई जाती है जिसको जीन कहा जाता है। बहुत डिटेल चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगला है
हेट्रोस्टाइली। हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, स्टाइल, स्टाइली मतलब स्टाइल, इसका मतलब हुआ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स विद डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल या फिलामेन। जैसे बच्चों ये देख लीजिए, मान लीजिए कि look over here, एक फ्लावर ये है, एक दूसरा फ्लावर बना लिया जाए यहां। देखिए अलग अलग स्टाइल की लेंथ, यहाँ पे स्टाइल बहुत छोटा, यहाँ पे स्टाइल बड़ा, और यहाँ पे स्टामेन का जो फिलामेंट है बहुत बड़ा, यहाँ छोटा। भैया आपको सबको मालूम है शादियाँ बराबर वालों में होती है, ठीक, हमेशा। अब अगर मान लीजिए ये वाला जो पॉलन ग्रेन है, अब अगर सपोज ये इसी वाले फीमेल से शादी करना भी चाहे तो पॉलन ग्रेन को बच्चों अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाना पड़ेगा, ठीक, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फालतू का काम है। इसीलिए क्या होगा कि ये वाला पॉलन ग्रेन इससे क्रॉस कर लेगा, तब भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और ये वाला अपनी साइज का ढूंढेगा, अपने लेवल का, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। और ऐसी कंडीशन ऑक्सैलिस और प्रिमुला में पाया जाता है, ऑक्सैलिस एंड प्रिमुला, ठीक है। तो बच्चों आप चाहो भी तो आप आलिया भट्ट से शादी नहीं कर सकते हो, आपको मालूम है, लेवल अलग अलग है। सेम चीज़ यहाँ पौधों में भी है कि चूंकि हमेशा शादियाँ बराबर वो में होती है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन विच ऑलवेज फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट लेते हैं, जो भी नंबर हो, Hercogamy, and it includes natural barriers for self pollination। तो सेल्फ पॉलिनेशन के नेचुरल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से होते हैं, जैसे गाइनोस्टेजियम का पाया जाना इन कैलाट्रोपिस प्रोशेरा मदार, इट ऑलवेज फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा एक्स्ट्रोजैंथर का पाया जाना। भैया जब आप फ्लावर डायग्राम बनाते हो तो ये देखिए आप कैसे बनाते हो नॉर्मल कंडीशन में, ये देखिए इसे तो बोलेंगे इंट्रोज, और इंट्रोज हो तो फेवर्स करता है यू ऑटोगैमी को, मतलब जिधर दुल्हन है इधर सेंटर में फ्लावर है, उधर ही जो है डेहिसेंस हो रहा। अब कभी कभी पॉलन ग्रेन नाराज होता है स्टामेन, तो डेहिसेंस बाहर की तरफ होने लगता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रोज। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और या डेहिसेंस away from reach of stigma as in gloriosa,
ग्लोरियोसा सुपरबा, तो दैट इज रंगून की बेल। तो ऐसी कंडीशन में पिस्टिल तो यहाँ पे है और ये है स्टिग्मा, और डेहिसेंस जो है दूर हो रहा है, तो ये वापस नहीं आएगा, बल्कि बाजू में जो फीमेल मिलेगा, जो कार्पेल मिलेगा, वहीं पे पॉलिनेशन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द अडेप्टेशन आर कंडीशंस विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्या क्या बतलाया मैंने आपको? पहला डिक्लाइनिंग रिडक्शन इन सेक्स ऑर्गन, दूसरा आपको हमने क्या बतलाया? डाइकोगैमी, तीसरा हमने आपको बतलाया सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी, चौथा हमने आपको बतलाया हेट्रोस्टाइली, और पांचवा बतलाया मैंने आपको हर्कोगैमी। सो दीज आर द 5 मेजर कंडीशंस, contrivances, adaptations which favors cross pollination in angiosperm. और next one is pollinating agents. Abiotic and biotic. This is more important, more common. Biotic or abiotic pollinating agencies includes air and water. Amongst these, air is more important. Pollination by the agency of water occurs only in 30 species of usually monocots. Water is essential for the act of fertilization. कहाँ कहाँ बच्चों? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो and cycads. So water is essential for the act of fertilization in algae, fungi, bryophyte, pteridophytes, and among gymnosperm, primitive gymnosperm में water is essential, but higher में coniferals आगे एक बस ड्रॉप चाहिए होता है, वाटर इज नॉट एसेंशियल, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, इवोल्यूशन के दौरान धरती पे जो वाटर की ही क्राइसिस हुई है धीरे 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 धीरे। तो चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में मोस्ट एडवांस फिजियोलॉजी इस समय हम लोग C4 फिजियोलॉजी को कहते हैं, एंड इवोल्यूशन ऑफ C4 फिजियोलॉजी, C4 plants in hot and humid climate of tropical biome is in response to conserve water. पढ़ते हैं हम लोग, for equal amount of water to be lost during the process of transpiration, C4 plant produces twice as much sugar as C3 plants. So C4 plants are better photosynthesizer, they don't have photorespiration also, they are the resident of tropical biome. बच्चों सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। अब पॉलिनेशन बाय वाटर में फिर दो कंडीशन होती है, हाइड्रोफिली and एपीहाइड्रोफिली. एपी means above, on surface as in वेलिसन एरिया, और यहाँ पे अंडर वाटर जैसे जोस्टेरास, नाजास,
इन दोनों में अंडर द वाटर। और पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एज एनीमोफिली और बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। तो बच्चों अभी आज इतना पढ़िए, फिर कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।